Ignited Minds Tutorials recently uploaded a new video on the topic of number systems for Class 9 CBSE in Mathematics. This video aims to provide a knowledge explanation of the important concepts of number systems covered in the CBSE curriculum. In Class 9 CBSE Mathematics, number systems is a fundamental topic that forms the basis for further mathematical concepts. This video focuses on helping students understand the different types of numbers, such as natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, and irrational numbers. The video begins by introducing the concept of natural numbers and their properties. It then progresses to explore whole numbers, integers, and their operations, including addition, subtraction, multiplication, and division. Furthermore, the video delves into rational numbers, explaining how they can be expressed as fractions and decimals. It also discusses the properties and operations of rational numbers. Lastly, the video touches upon irrational numbers and their representation on the number line. Overall, this video by Ignited Minds Tutorials provides a comprehensive overview of number systems for Class 9 CBSE Mathematics. It aims to enhance students' understanding of these concepts through clear explanation and examples. Whether preparing for exams or seeking to strengthen their foundation in mathematics, this video serves as a valuable resource for Class 9 students. Okay, is 0 a rational number, bacha badi? Is 0 a rational number? So the answer is yes, it is. ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? Any rational number can be expressed as a by b. Can we express 0 in the same way? Yes, we can. तो 0 upon 3 ले लो और 0 upon -2 ले लो, 0 upon let's say 2.5 ले लो, ठीक है, 0 upon 1/3 ले लो. All these are basically what? In the same format. Rational number is basically in the format of p by q, where p is equivalent to integers, q is equivalent to integers, and q cannot be equal to 0. So for any value, all these will give you what? 0. क्या ये समझ में आ रहा है? All these will give you 0. So is 0 a rational number? So the answer is yes. ठीक है, 0 is a rational number. 0 is a rational number because it can be expressed, it can be expressed as p by q, where p and q are integers, and q is not equal to 0. ठीक है, फिर p and q are integers and q is not equal to 0. So यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? For example, 0 can be said as 0 upon 3, ठीक है, और 0 upon 2 ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है. फिर पे आपका find 6 rational numbers between 3 and 4. ओके, सो क्वेश्चन क्या है? Find 6 rational numbers between 3 and 4. ठीक है, कैसे करेंगे इसको बोलो? तो n क्या हो जाएगा? n is 6. ठीक है, तो यहां पे ये n plus 1, ये क्या हो जाएगा आपका? 7. ये आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर. सो व्हाट यू डू इज, यहां पे देखो 3 है और ये आपका 4. ठीक है, क्लियर है? ओके, 3 को हम किस में डिवाइड करेंगे? n plus 1 नंबर्स है ना, आपको इसमें ठूसने हैं. ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसको बताइए? 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? क्या? ठीक है, तो आपका देखो ये जो 7 है ना, इसको अपन ऐसे लेंगे. देखो यहां पे मुझे अगर 3 चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 7 को? अरे देखो यहां पे 3 है ना, ठीक है, अगर मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना आएगा मेरा? 21. ठीक है, ये 4 है, ये 4 को उठा लो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 7 से. कितना आ गया तुम्हारा? 28. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? आपका कितना है? 3 और 4 के बीच में आपको n नंबर्स डालने हैं. n की वैल्यू है 7.
तो इस n की वैल्यू बेसिकली 6 है, n की वैल्यू है बेसिकली 6, तो व्हाट यू डू इज आप n प्लस करो, दैट इज 7, इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21, इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो 28। नाउ व्हाट यू डू इज इस 21 को 7 से डिवाइड करो और इस 28 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 3। अभी आप भाई साहब नंबर्स डाल सकते हैं, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। सो दीज आर 6 रैशनल नंबर्स। ये 21/7 बेसिकली क्या है 3, और ये 28/7 बेसिकली क्या है 4। सो दीज आर द 6 रैशनल नंबर्स दैट यू हैव, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड फाइनली 27/7, बिटवीन 3 and 4। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आप करेंगे क्या, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स दिया हुआ है, तो ये अगर फाइंड n रैशनल नंबर्स, ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, देखो अगर n रैशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b आपको बोला जाए, a एंड b आर 2 नंबर्स और इनके बीच में n रैशनल नंबर्स निकालने, तो आप क्या करोगे, पहले तो ले लोगे n+1, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, a को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे n+1 से, और a/1 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे किससे n+1 से। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे वही किया ना आपने, यहाँ पे क्या था 3 मतलब 3/1, तो आपने n+1 लिया मतलब 6+1 लिया, दैट इज 7, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया। सो व्हाट डिड यू गेट 21/7, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे b है, b को क्या करोगे, b कैन बी रिटन एज b/1, तो b को आपने मल्टीप्लाई किया n+1 से और 1 को भी आपने मल्टीप्लाई किया किससे n+1 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा b इंटू n+1 एंड n+1, तो कितना आ गया बोलो, यहाँ पे ये हो गया b कितना था 4 इंटू 7/1 इंटू 7, तो ये हो गया 28/7, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये दो नंबर्स मिल गए, 21/7 इज एज गुड एज 3, 28/7 इज 4, ठीक है। अभी आप नंबर डालो, 21 के बाद आता है 22 7, 23 7, 24 7, 25 7, 26 7, 27 7। ये हो गए आपके 6 नंबर्स जो आप 3 और 4 के बीच में ठूंस सकते हैं। सो दीज आर द 6 नंबर्स पीपल, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and finally 27/7, ठीक है। These are the 6 numbers that you can insert between 3 and 4. Are we clear on this entire process people? ठीक है। So again just a repetition, if there are 2 numbers given to you A and B and if suppose in between you have to fill n rational numbers, इन दोनों के बीच में आपको n rational numbers ठूंसने हैं, तो आप क्या करोगे, a को मल्टीप्लाई करोगे, a मतलब हो गया आपका a/1 है ना, और b मतलब हो गया आपका b/1। ये क्या हो गया अपने आप ही, ओ कुछ है, ओके चलिए b/1, ठीक है। a इंटू n+1 अपॉन 1 इंटू n+1, ठीक है, और इधर क्या करोगे b इंटू n+1 अपॉन 1 इंटू n+1। ये अगर आप करोगे, अभी आप बीच में भाई साहब फ्रैक्शंस डाल दो, अब आप फ्रैक्शंस डाल देंगे बीच में, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल इंट्रोड्यूस n रैशनल नंबर्स। ये आपके बीच में जो होंगे, these will be n rational numbers, these will be n rational numbers, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए बच्चा पार्टी, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो आपका सवाल है यहां पे, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। देखो 3/5 इसको इधर लिखो, ठीक है, और 4/5, इनके बीच में तो तुमको कोई भी रैशनल नंबर देख लेना है, तो क्या करोगे तुम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को भी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 6/10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 8/10। 6 और 8/10 के बीच में एक ही रैशनल नंबर आ रहा है, दैट इज 7/10, तो नहीं हो रहा है। तो अभी अगर 3/5 है, इंटू 3 करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया बोलो, 3 3 9, 5 3 15। यहाँ पे 4/5 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया बोलो 12/15, फिर भी नहीं आ रहा। देखो
9, 10, 11 दो ही नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको कितने चाहिए? 5। करते रहिए भाई साहब, 3/5 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया? 12/20। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 4/5 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो गया 16/20। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 13, 14, 15, तीन ही है, ओके। 3/5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना हो गया? 15/25। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 4/5 इंटू 5/5, सो दैट विल बी 20/25। यहाँ पे भी अभी कितना आ रहा है देखो? 15, 16, 17, 18, 19, चार ही आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये तो आपका गेस वर्क है, आप सीधा सीधा यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, 3/5 इंटू 6/6 कर दो तो कितना आ जाएगा? 18/30, है ना। और यहाँ पे 4/5 इंटू 6 करो तो कितना आ जाएगा? 24/30। नाउ कैन यू इंट्रोड्यूस? अभी आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 3/5 मतलब 18/30, और इधर कितना लिख सकते हो देखो? 24/30, ठीक है। अब ये कर लो भाई साहब, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, और ये हो गया 23/30, ठीक है। 18/30 को आप क्या लिख सकते हो बोलो? 3/5 लिख सकते हो, ठीक है। और 24/30 को आप क्या लिख सकते हो बोलो? 24/30 को आप लिख सकते हो 4/5, लिख सकते हो कि नहीं बोलो? यहां से तो आया ये, ठीक है। अभी कुछ चेंजेस देखो, 19/30 वैसा ही रहेगा, तो दिस विल बी 19/30। 20/30 कैसा रहेगा भाई साहब? ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी 2/3। 21/30, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30, तो ये हो गया 17, 7/10। 11 2 जा 22, नहीं 2 11 जा 22, और 2 15 जा, तो ये हो गया 11/15, दैट विल बी 23/30, ठीक है। ये हो गया आपके 5 नंबर्स। सो 5 नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 are 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 and 23/30. That's how you will do it. Clear है? Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. State whether the following statements are true or false. Give reasons for your answer. Every natural number is a whole number. बच्चा पार्टी, अरे ओ बच्चा पार्टी, ए बच्चा पार्टी, क्या कर रहे हो बच्चा पार्टी? ओके, यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा बोलो? नेचुरल नंबर इज 1 2 3, और होल नंबर क्या है बोलो? 0 1 2। तो क्या हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है कि नहीं? है ना भाई साहब? क्या 1 होल नंबर है? क्या 2 होल नंबर है? क्या 3 होल नंबर है? तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। लेकिन उल्टा पूछूं मैं, इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? नहीं, क्योंकि 0 आपका होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। क्लियर है? सो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सो द आंसर इज टुरु टुरु टुरु, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो इंटीजर क्या होता है? बच्चा पार्टी, इधर देखना है और समझना है। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका भाई साहब +1 +2, ऐसा करते करते हम जाएंगे। ये हो गया -1 -2, ऐसा करते करते जाएंगे। ये आपके इंटीजर्स हो गए, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या -2 एक होल नंबर है? नहीं आ रहा है भाई साहब, 0 से नीचे कुछ है ही नहीं होल नंबर में, ठीक है। सो आपका -1 -2 दीज आर नॉट होल नंबर्स, आपका सिर्फ यहां तक है होल नंबर में, इंटीजर में। सो दिस वुड बी फॉल्स फॉल्स फॉल्स। समझम समझम समझम। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रैशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर क्या होंगे? जैसे अगर मैं बोलूं रैशनल नंबर में आपका 2.5 ले सकते हो रैशनल नंबर, इज इट इज, ठीक है। 3/2 रैशनल नंबर है, -4/5 रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये सब होल नंबर्स हैं? नहीं है भाई साहब, दीज आर नॉट होल नंबर्स। होल नंबर्स आर 0 1 2 3 ओनली, ठीक है। सो दीज आर नॉट होल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा बाड़ी? दिस विल बी फाल्सम फाल्सम फाल्सा। समझम समझम समझम, बहुत बढ़ियम बढ़ियम बढ़ियम। तो ये समाप्त करता है आपका एक्सरसाइज 1.1। अभी हम जाएंगे एक्सरसाइज 1.2 में। चलो भाई साहब।
चलिए एक्सरसाइज 1.2 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखो रियल नंबर आपका जो होता है, रियल नंबर ये बना होता है दो चीजों से, रैशनल एज वेल एज इरेशनल, ठीक है। सो क्या हम बोल सकते हैं सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स हैं? ये है बेस, ठीक है। सो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सो दिस इज बेसिकली ट्रू, दिस इज ट्रू। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। चलिए देखिए यहां पे हम एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है, दिस इज बेसिकली योर नंबर लाइन, ठीक है। ओके, सो लेट्स से इफ वी मार्क द पॉइंट्स, यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 6। ओके, बताओ मुझे इस, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ भाई साहब, where m is a natural number, every point on the number line is under root m। ये हो गया आपका -1, -2, -3, ठीक है। ओके, क्या 1 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1, 2 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4, है कि नहीं? तो कुछ ना किसी का भाई साहब तो अंडर रूट होगा, लेकिन इस साइड आओ, कभी आप किसी चीज का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे और वो नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो क्या ये ट्रू होगा? ये पोर्शन तो नंबर लाइन में कवर ही नहीं होगा, दिस विल नॉट बी कवर्ड, ठीक है। हालांकि किसी पॉजिटिव रूट को आप प्लॉट कर सकते हैं, बट दिस कैन नॉट बी कवर्ड, नेगेटिव तो नहीं कवर हो पाएगा ना, ठीक है। सो इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, सो द आंसर इज फॉल्स, 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 ठीक है। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर्स क्या इरेशनल होंगे? नहीं, इरेशनल भी हो सकते हैं और रैशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी फॉल्स। अगर उल्टा पूछा जाए एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सो ट्रू, ठीक है, क्लियर? ओके। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल if not give an example of the square root of a number that is a rational number, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे भाई साहब, स्क्वायर रूट्स ऑफ ओनली स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स आर रैशनल, ठीक है। स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, ठीक है। स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, ठीक है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे, आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर रैशनल, ठीक है। ध्यान दोगे पॉजिटिव इंटीजर, जैसे समझो आप अंडर रूट 4 है तो इसका क्या हो जाएगा बोलो 2, ठीक है। अंडर रूट 9 है, इसका क्या हो जाएगा बोलो 3, रैशनल है भाई साहब। अंडर रूट 1 है, क्या हो जाएगा बोलो 1। अंडर रूट भाई साहब 16 है, क्या हो जाएगा बोलो 4। अंडर रूट 25 है, ये क्या हो जाएगा बोलो 5, ठीक है। अगर मैं अंडर रूट 2 निकालूं तो दिस विल बी 1.41 और ये चलता ही जाएगा भाई साहब, दिस इज इरेशनल। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, दीज आर व्हाट? रैशनल, दीज आर रैशनल। तो रैशनल इसलिए हैं क्योंकि अंदर जो नंबर है दैट इज बेसिकली अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। और अगर अंडर रूट 2 देखोगे, अंडर रूट 3 वैसे ही कितना होगा 1.73, ऐसा चलता जाएगा। सो दीज आर व्हाट? ये नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, 2 and 3 आर नॉन स्क्वायर नंबर्स, सो ऑब्वियसली दीज विल बी व्हाट पीपल, इरैशनल। आर वी गेटिंग दिस बच्चा बाड़ी, ठीक है, ये आपका इरैशनल हो जाएगा, ठीक है। सो आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? तो the answer is no, ठीक है। स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर रूट्स ऑफ ओनली स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स आर रैशनल, ठीक है। बाकी नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या हो जाएगा? इरैशनल, ठीक है। ओके, इफ नॉट गिवन एग्जांपल, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना है, ठीक है, किसका? ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो? अंडर रूट 1, अंडर रूट 4 2, अंडर रूट 9 3, अंडर रूट 16 4, सिंपल, ठीक है। ओके, जस्ट वन मोमेंट पीपल। अंडर रूट 5 को देखो हम नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जस्ट लुक एट इट पीपल, हम
√5 को अपन अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं, सो इधर हो गया भाई साहब आप कितना, सो नंबर लाइन में अगर ड्रॉ करना है, ठीक है, एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया। ओके, नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से लेकर 2 तक जाएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका 0, यहाँ तक 2। सो लेट्स से वी प्लेस आवर कंपासवा हेयर, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। अभी इस 2 पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू पीपल, हम बोला बोला बोलो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का सीधा साधा तरीका भाई साहब, आप यहाँ पे प्रोट्रैक्टर को रखिए, ठीक है, और भाई साहब क्यों नहीं हो रहा भाई, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया आपने। ये वाला लेंथ कितना हो गया बोलो, 2 का, ठीक है। अभी आपको 1 का लेंथ लेना है, तो आपने भाई साहब इसको इधर बैठाया, और ये हो गया 1 का लेंथ, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अभी आप भाई साहब इसको देखो, ये आपका एक्चुअली में क्या हो जाएगा, दिस अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, सो लेट्स से अरे यार मत मत मत, वन को अपन ने ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे इस पे हम डालेंगे इसको 1 को, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका 1, ठीक है। ओके, नाउ वी विल जॉइन दिस, ठीक है। ओके, अभी हम यहाँ पे देखो, देखो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 1, ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, सो 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा √5, ठीक है। अभी आप भाई साहब कंपास को इधर रखेंगे, अनलॉक करेंगे, और ये भाई ठीक है, इसको अभी हम वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस आर्क, तो ये जो ड्रॉ किया आपने आर्क, ये जो लेंथ है ये आपका √5 हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स ठीक है। सो अगर हम भाई साहब इधर करते हैं इसका, तो दिस लेंथ इज हाउ मच, हम पीपल, दिस लेंथ इज √5, ये वाला हो गया आपका √5, दिस इज गोइंग टू बी √5, ठीक है। ये वाला जो लेंथ लिया था आपने वो कितना था, दिस लेंथ वाज हाउ मच, हम पीपल, दिस लेंथ वाज 2, दिस लेंथ वाज बेसिकली 2, और ये वाला लेंथ कितना था, ठीक है, दिस लेंथ वाज बेसिकली 1, ये लेंथ 2 था और ये लेंथ आपका था 1, ठीक है, ये था 1, सो ये हो गया 2, ये हो गया 1, और ये वाला हो गया आपका कितना, दिस लेंथ वाज हाउ मच, √5, सो दिस लेंथ वाज √5, आपने कंपास को रख के ऐसे ड्रॉ किया, तो दिस लेंथ इज हाउ मच, √5, ठीक है। सो आपका यहाँ पे हो गया कितना, O A, और ये हो गया आपका B, सो OA इज बेसिकली हाउ मच, OA इज √5, क्लियरम पीपलम, आर वी क्लियरम ऑन दिस वनम, ठीक है। समझ क्यों नहीं आया, ओके, चलिए देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखो 0 और ये वाला लेंथ आपने कितना लिया था 2, ये वाला जो लेंथ आपने लिया था 2 और ये कितना हुआ 1, सो इट्स बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल ना, देखो यहाँ पे
सो दिस इज बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल। इसका लेंथ कितना है 2 और इसका लेंथ कितना है 1, ठीक है, क्लियर है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कितना होता है, अगर आप देखोगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, दिस इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम। लेट्स से अगर ट्रायंगल है आपका ए बी और सी, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, ए बी का स्क्वायर हो गया आपका 2 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 4 + 1 दैट इज 5, ठीक है। सो ए सी का स्क्वायर अगर आपका हो गया 5, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5, तो आपका ये वाला जो वैल्यू है बच्चा पार्टी, दिस विल बी √5। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। अभी आप क्या कर रहे हो, कंपास को यहां पे रख रहे हो, ये रेडियस ले रहे हो और ये ड्रॉ कर रहे हो, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, देखो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये वाला जो लेंथ आया ये कितना हो गया √5, दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। सो ये आपका √5, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, ठीक है। हमने भाई साहब इसमें कुछ सवाल भी किए हुए हैं, ठीक है, बट जस्ट अ रेपिटेशन, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। चलो बच्चा पार्टी इसको करना है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच वन ऑफ देम हैज, ठीक है। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे 36/100, दिस विल बी हाउ मच 0.36। किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है ये, व्हाट टाइप, हाँ। सो दिस इज बेसिकली टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा आनंद, रैशनल हो जाएगा ये, सो दिस विल बी बेसिकली टर्मिनेटिंग, हेंस इट इज रैशनल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग,
दोनों अगर होता है तब जाकर वो इरेशनल होता है। इनमें से कोई एक भी अगर होगा तो नहीं होगा, वो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, ओके। 1/11 बच्चा बाड़ी क्या हो जाएगा बोलो? 1/11। सो कर लीजिए भाई साहब, 11 ये हो गया 1, 0 पॉइंट ये हो गया 0, 11 0, 11 9 ज़ा 99। ठीक है, कितना आएगा? 1 अगेन 0। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे 0 डालेंगे, जैसे आपने यहाँ पे 0 डाला, फिर एक और 0, सॉरी। सो आपका यहाँ पे है 1 और ये आपका 11, ये हो गया 0, तो यहाँ पे पॉइंट डाला आपने, एक 0, एक और 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 0। ठीक है, 11 9 ज़ा 99, ये हो गया 1, फिर से देखो 0, तो यहाँ पे एक और 0, फिर से देखो 0, फिर एक 0, 9। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा आपका। सो इज इट अ रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर? रैशनल क्यों? तो ये आपका रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली रैशनल। और एनी विच वेज आप रैशनल नंबर को p/q फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हो, वेयर p एंड q बोथ आर इक्वल इन टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 11 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया। 4 1/8 कितना हो जाएगा बोलो? 4 1/8 दैट विल बी हाउ मच? 4 8 ज़ा 32, 33/8। इसको कर लो भाई साहब 8, और ये हो गया आपका 33, 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे कितना बचा? 1 पॉइंट आएगा 0, 8 1 ज़ा 8, 9 10, 8 2 ज़ा 16, ये हो गया 4, 8 5 ज़ा 40, ये हो गया कैंसिल। तो आपका कितना आ गया बोलो यहाँ पे? 4.125, 4.125। ठीक है, इज दिस अ रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर? रैशनल क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? दिस विल बी रैशनल एज इट इज टर्मिनेटिंग। ये आपका भाई साहब टर्मिनेटिंग है, तो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3/13 बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा? सो लेट्स से आपका 3/13, लेट्स डू दिस पीपल। 13 और ये हो गया आपका 3, 0 पॉइंट, यहाँ पे 13 2 ज़ा कितना हो गया? 26। ठीक है, देन वी हैव हाउ मच? 4, 13 3 ज़ा 39, ये हो गया 1 0। ठीक है, 1 आया तो 0 डाला हमने। ठीक है, एक और 0 डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर 13 7 ज़ा 91, 13 8 ज़ा 13 8 ज़ा, तो आपका 7 डालेंगे आप यहाँ पे, 91 कितना आया बोलो यहाँ पे? 9। ठीक है, 13 बोलिए 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, 13 7 ज़ा 91 हो जाता है, तो 13 6 ज़ा 78। अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 9 10, 8 से 7 गया 1, 120। ठीक है, कीजिए भाई साहब अभी। 13 कितना हो जाएगा? 13 9 ज़ा 13 9 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9 10 11, 117। तो 13 9 ज़ा कितना हो गया? 117। यहाँ पे कितना बचा बोलो? देखो फिर से आ गया, देखो 3। ठीक है, वही सिलसिला आपका जारी रहेगा। सो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? 3/13। सो दिस विल बी बेसिकली 3/13। 3/13 इज इक्वल टू 0.2300769, 2300769, 2300769, ऐसा चलता ही रहेगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 0.2300769 बार, ऐसा लिख सकते हैं बोलो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा। What would be the reason for this being a rational number people? ठीक है, it is non terminating तो है ये, लेकिन ये repeating है। non terminating है but at the same time it is basically what? repeating। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके ओके, 2/11। चलो बच्चा पार्टी फटाफट करना है। 2/11 ओके। सो 2/11 है बच्चा बाड़ी, क्या हो जाएगा बोलो? आपने देखो यहाँ पे 1/11 निकाला है, कितना आया था? उसको बस अब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है भाई साहब। 1/11 को
आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये वाला आंसर आपका 2/11 में आ जाएगा। ओके, 329 बाई 400, इसको करोगे कितना आएगा, देखो ये दोनों जीरो को कैंसिल करो, यहाँ पे 3 हो गया तो 3.29, सो 4 8 जा 32, कितना आया बोलो, ये 0 और इधर कितना आया 9, 4 2 जा 8, 9 से 8 गया 1, 4 2 जा 8, 9 10, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये कितना आ गया बोलो, दिस विल बी 329 बाई 400 इज इक्वल टू 0.8225। रैशनल होगा या इरैशनल होगा बच्चा पार्टी? दिस विल बी रैशनल, रैशनल क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। दिस इज रैशनल बिकॉज दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके, you know that 1/7 is equal to this much. Can you predict the decimal expansion of 2/7? कितना हो जाएगा? देखो 1/7 आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो 1/7 is equal to 0.142857। बार मतलब क्या होता है? बार मतलब होता है 0.142857, 142857, 142857, ऐसा चलता ही रहेगा। ठीक है, तो 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। अगर मैंने 2/7 किया तो कितना हो जाएगा बोलो, 0.142857 इंटू 2 कर देंगे अपन, है ना, इंटू 2, सिंपल। आपका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय 2 है तो कितना हो जाएगा ये, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 1 11, 8 2 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका बार, सिंपल। ठीक है, आर बी क्लियर? 5 7 2 जा 14, 5 2 10, 1 11, 8 2 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। 3/7 कितना हो जाएगा भाई साहब? 3/7, तो 3/7 आप कर लो यहाँ पे 0.142857 बार में इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 16 17, 8 3 जा 24, 1 25, 3 2 जा 6 7 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 1 4, कितना आ रहा है यार, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 16 17, 8 3 जा 24 25, 3 2 जा 6 7 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 1 4, तो ये हो गया आपका 0.428571। ठीक है, 4/7 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.142857, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 21 22, 8 4 जा 32, 33 34, 4 2 जा 8, 9 10 11, 4 4 जा 16, 1 17, 4 1 जा 4, 1 5। ठीक है, 4/7। ठीक है, क्लियर है? 5/7 will be how much? 0.142857 into 5। ठीक है, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25 और ये हो गया 28, 8 5 जा 40, 41 42, 5 2 जा 10 और ये हो गया 14, 5 4 जा 20 21, 5 1 जा 5 6 7। ठीक है, ये हो गया आपका 0। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? ओके, then we have how much? 6/7। सो ये हो गया आपका 6/7, that will be 0.14287 into 6, so this will be 7 6 जा 42, 5 6 जा 30 34, 8 6 जा 48 49 50 51, 6 2 जा 12 12 plus 5 17, 4 6 जा 24 25, 6 1 जा 6 7 8। ठीक है, इस तरह से आप करते जाएंगे। यहाँ पे सब में बार आएगा, यहाँ पे भी भाई साहब बार आएगा, आई फॉरगॉट टू पुट दिस, और ये भी भाई साहब आपका बार होगा। दिस आंसर विल बी हैविंग अ बार, एवरी आंसर विल बी हैविंग अ बार। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? सो विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये 1 है, यहाँ पे 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भाई साहब 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी हैव 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही आ रहे हैं आप लोग। चलिए इसको कीजिए जरा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स
एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पे क्या है बच्चा पार्टी 0.6 और ये बार है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6। एक्चुअली में 6 बार मतलब कितना होता है 0.6, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका 10x कितना हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 10 से, ठीक है। तो 10x विल बी हाउ मच, तो एक चला जाएगा यहाँ पे 6.6 बार ऐसा लिख सकते हैं, और x की वैल्यू आपने क्या मानी हुई है 0.6 बार, दोनों को कर दीजिए माइनस, ठीक है, सबट्रैक्टिंग। तो ये आपका लेट से 2 हो गया एंड दिस इज इक्वेशन 1। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो व्हाट विल यू गेट पीपल, हम, ठीक है, दिस गेट्स कैंसिल, हो गया 6, 10x माइनस x, ये कितना आ गया बोलो 9x, 9x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/9। इसको चाहे तो कर दिए, देखो 3 2 6, 3 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 2/3। व्हाट वाज योर, तो ये आपका 2/3 हो गया है ना। सो एक्सप्रेस द, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। चाहे तो आप करके देख लो, यहाँ पे देखो 3 को अगर मैं 2 को अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो गया पॉइंट आ गया, 3 6 18, कितना आया बोलो 2 और ये 0, 3 6 18, अगेन कितना है बोलो 2 और 0, 3 6 18, ऐसा ही भाई साहब चलता रहेगा ये, है ना। सो 2/3 इज इक्वल टू 0.6 बार, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो आपका 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। चलिए 0.47 बार है, यहां पे ध्यान से देखोगे अगर 0.47 बार है यहां पे, चलिए फटाफट, हो गया डन बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी जल्दी, 0.47 बार है। चाचू कहाँ सीलिंग की तरफ देख रहे हो, इधर देखो भाई साहब, कितना हो गया, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है। सो व्हाट वुड दिस मीन, 0.4777 भाई साहब चलता रहेगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर 100x करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ना हमको पॉइंट को इधर लाना है, ठीक है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देयरफॉर 100x, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। सो व्हाट विल यू गेट पीपल, दिस विल बी 47, ये 2 पॉइंट पीछे जाएगा 0.7 बार, इस पूरे के लिए अपन क्या लिख सकते हैं 7 बार लिख सकते हैं, 47.7 बार। और x की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, दिस इज 4.7 बार, ठीक है, क्लियर है। x सॉरी नहीं यार, हाँ हमको 10x करना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो ये माइनस नहीं हो पाएगा, तो अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा 10x। अगर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, लेट्स से x इज इक्वल टू 0.47 बार है, इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करें तो व्हाट डू वी गेट, 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे एक टपकेगा ये, तो ये हो गया 4.7 बार, बार और बार बराबर नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अभी आप कर लो भाई साहब सब्ट्रैक्टिंग, सो दिस इज बेसिकली लेट्स से योर दिस वाज इक्वेशन 1, ठीक है, दिस इज आपका इक्वेशन 2 विच इज व्हाट 10x इज इक्वल टू 4.7 बार, ये था आपका इक्वेशन 2 एंड 100x इज इक्वल टू 4.77 बार, तो ये था आपका इक्वेशन 3, ठीक है। ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, सो व्हाट डू वी गेट पीपल, हम 7 और 7 कैंसिल हो गया, 47 माइनस 4 कितना हो गया 43, ठीक है, 90x, ठीक है। सो दिस विल बी
x इज इक्वल टू 43/90। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 0.47 बार that will be equal to 43/90। Are we clear on this one people? ठीक है, 0.47 बार will be equal to 43/90। क्लियर? क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? ओके ओके ओके। 0.001 और ये पूरा बार है, देखो, ठीक है। सो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे x है, दिस इज इक्वल टू 0.001 और ये पूरा बार में है। कैसे करेंगे इसको बोलो? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसका मतलब क्या है, देखो x की वैल्यू है 0.001 001 001 ऐसा चलता रहेगा। तो अपन ने इसको क्या किया भाई साहब, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1000x इज इक्वल टू 1.001 है ना, 001। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब। आर बी क्लियर? ओके। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.001। ठीक है, ओके। अपन ने इसको माइनस कर दिया, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ये कितना हो गया बोलो? 999x, ठीक है, इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई? 1/999। x की वैल्यू हो गई 1/999। बस खत्म। समझ में आ रहा है ये? x की वैल्यू हो गई 1/999। तो x क्या माना था आपने? 0 पॉइंट, तो ये 0.001 बार, दिस इज इक्वल टू 1/999। क्लियर हम बच्चा पार्टी? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही आ रहे आप लोग। ओ चलिए भाई साहब, तीनों हो गए। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p by q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? चलिए इसको करना है भाई साहब, यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0.9999 चले जा रहा है भाई साहब। ये तो x की वैल्यू क्या हो गई? 0.9 बार हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? 10x लिख सकते हैं कि नहीं? 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.9 बार। एक टपके का भाई साहब, है ना, 9.9 बार। x की वैल्यू क्या मानी आपने? 0.9 बार। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कितना हो जाएगा बोलो? 9x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सरप्राइज। ठीक है, सरप्राइज क्यों है भाई साहब आपका? क्योंकि आपने चालू किया था किससे? 0.99 से, और आपका आंसर कितना है? 1। भाई साहब यही करते हो ना, देखो 0.999 को तुम राउंड ऑफ क्या लिखते हो? 1 लिखते हो। क्यों लिखते हो? इसी की वजह से लिखते हो। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई यू बेसिकली राइट इट। सो यस, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? यस, इट इज 1। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस करो भाई साहब, डिस्कस लिखा है इसमें। ठीक है, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 0.9999 कैन बी मेड इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। अरे यार, फाइव 30 है आज। ओके बच्चों, फांसी हम क्या कर रही थी? अभी सवाल कर रही थी। एक बहुत ही फालतू सा सवाल है। 1/17 का डिवीजन करो 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 बेटा, मेहनत करो। एनसीईआरटी बोल रही है मेहनत करो, तो करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स डेसिमल एक्सप्रेशन? तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है? 1 और ये है आपका 17। ठीक है, 0 पॉइंट, ये 0 आया, नहीं जाएगा, ये एक 0 आया। ठीक है, पॉइंट आया तो एक 0 आया, 0 आया, एक और 0 आया, 17। बोलो 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 बोलो। 17 6 7 6 42 प्लस 4 10, नहीं जाएगा बच्चा। 17 5 85। ठीक है, ये आ गया कितना आपका? 5 और ये आ गया 15 और ये हो गया 0। 17 6 होता है आपका 102, 17 8
7 8 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8 + 5 13, 136 जाएगा भाई साहब, ये जाएगा। 17 8 ज़ा 136, ये हो गया 4 1 140, ठीक है। तो ये हो गया 17 × 7, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 + 4 11, 17 8 ज़ा, चलिए 8 ज़ा भाई साहब आपका कितना हो गया 136, 136 तो ये हो गया आपका 40, है ना, 40, 17 2 ज़ा 34, 34 तो ये बचा कितना 6, 17 17 17, कोई काम नहीं है भाई साहब, कि सब फालतू सवाल देते हैं। 7 3 ज़ा 21, 3 1 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 51, कितना हो गया भाई साहब आपका 90, ठीक है। 17 फिर से करेंगे आप 5 ज़ा 85, 85 85 85 85 किया तो कितना बचा बोलो भाई साहब 5, ठीक है। 17 2 ज़ा 34, 34, ठीक है। कितना बचेगा बोलो यहाँ पे 4 + 6 10, 4 से 3 गया 1, 160। 17 8 ज़ा 17 9 ज़ा कितना आता है भाई साहब 7 9 ज़ा 63, 9 1 ज़ा 9 + 6 15, तो 17 9 ज़ा कितना हो गया आपका 153, ये हो गया आपका 70 2 ज़ा 34, 17 7 4 ज़ा 28, 4 ज़ा 4 5 6, 17 4 ज़ा यहाँ पे कितना हो गया 68, ठीक है, 68 हो गया। सो दैट विल बी 2 17 1 ज़ा 17, अगेन 3 17 1 ज़ा 17, ओ हो भाई साहब ये तो चले जा रहा है क्या, मेरे को कोई काम 3 7 2 1 1 1 30, 7 नहीं यहाँ पे आएगा आपका 7 + 3 10 130 ना, 17 इस तरह से भाई साहब ये चलता जाएगा, लेकिन ये आपका रैशनल होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो रुकेगा भाई साहब ये। दिस विल बी बेसिक, हाँ कितना रहा है क्या नहीं, कोई जरा मेहनत करेंगे इसको 1/17 ऐसे डिवाइड करना है। आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ये, लेकिन रिपीटिंग होगा, ठीक है। ओके देखो यहां पे पूछा है आपको राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating and non recurring, तो ये टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते। सिंपल भाई साहब आप देख लो, ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स आर इरेशनल, ठीक है, आर इरेशनल। और इरेशनल मतलब क्या होता है भाई साहब, इरेशनल होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग एज वेल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है, क्लियर है। सो ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स आर इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो भाई कोई भी स्क्वायर रूट √2, ये हो गया भाई साहब आपका क्या 30 नंबर डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है। लेट्स टेक √3, अगेन दिस वन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, this one also will be non terminating and non recurring. Again let's say √5, ठीक है, this one will be non terminating, this one will be non terminating and non recurring, ठीक है। 3 एग्जांपल्स हो गए भाई साहब आपके। जितने भी आपके स्क्वायर रूट नॉन स्क्वायर नंबर्स के होंगे वो सारे इरेशनल होंगे, और अगर इरेशनल होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रेकरिंग भी होंगे। सो ऑल दीज विल बी बेसिकली व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग मींस इरेशनल, क्लियर है, आर बी क्लियर। सो ऐसे तमाम एग्जांपल्स दे सकते हैं। √7 हो जाएगा भाई साहब, √8 हो जाएगा, √10 हो जाएगा, √11, √12, ठीक है, √13, √14, √15, √17, ये सारे नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके,
फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। आपको रैशनल नंबर्स डालना है बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा? अरे बोला ना बोला भाई साहब, 5/7 एंड 9/11 रैशनल नंबर डालना है। तो 5/7 और ये भाई साहब आपका क्या 9/11, इन दोनों को भाई साहब इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 7 × 11, 5 × 11 कितना हो गया? 55/77 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी, मतलब इसके डिनोमिनेटर को इससे, उसके डिनोमिनेटर को इससे, तो 9 7 जा 63/77। ठीक है, तो 5/7 को अपन क्या लिख सकते हैं? 55/77 लिख सकते हैं, और 9/11 को अपन क्या लिख सकते हैं? 63/77। सो दिस विल बी हाउ मच? दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल? हम 56/77, 57/77, 58/77, 59/77, 60/77। ठीक है, ये तमाम नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसी 3 को चुनना है। ठीक है, फाइंड 3 इरैशनल। ओके, सॉरी, ये इरैशनल है, आई एम सो सॉरी। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने रैशनल नंबर नहीं रखा, इरैशनल है। चलो भाई साहब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका है 5/7। ठीक है, तो इस नंबर को अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा बोलो? 7 और ये हो गया 5, 7 5 जा 35, कितना बचा बोलो? नहीं, 7 7 से 49 करेंगे ना। ठीक है, आपका ये हो गया भाई साहब 5, ये हो गया आपका 7, दिस विल बी 0.0, तो ये आपका हो गया 7। जैसे ही आपने भाई साहब पॉइंट डाला तो यहाँ पे एक 0 आ गया। 7 7 जा 49, ये हो गया 1, और ये हो गया 0। 7 1 जा 7, ये हो गया 3, 7 4 जा 28। ठीक है, ये हो गया 2, 7 2 जा 14। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 6, 7 8 जा 56, ये हो गया आपका 4, 7 5 जा 35। ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका 150, नहीं 7 5 जा 35, सॉरी 5 बचा ना यहाँ पे। सो यहाँ पे बचा आपका 4, 7 5 जा 35। ठीक है, दिस विल बी हाउ मच अगेन 50। देखो फिर से चालू हो गया, देखो ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बोलो? 5/7 कैन बी रिटन एज 0.714285। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इसके बाद फिर से वही चालू होगा, देखो 7 7 जा 49 फिर से। ठीक है, ओके, 9/11 है, देखो 9/11, तो 11 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 9, 0.11 8 जा 88, तो ये हो गया 20, 11 1 जा 11, ये हो गया भाई साहब आपका 9, फिर से देखो ये आ गया। ठीक है, 11 8, तो आपका यहाँ पे 9/11 इज गोइंग टू बी 0.81। ठीक है, 0.81। इन दोनों नंबर्स को लिख लो, देखो 0.714285। ठीक है, और ये हो गया आपका 0.81। इन दोनों के बीच में आपको कितने रैशनल इरैशनल नंबर्स चूजने हैं? 3। इरैशनल नंबर मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इससे बड़ा और इससे छोटा, तो आप क्या कर लोगे? देखो 0.72 लिख सकते हो, इससे बड़ा हो गया 7202, फिर 002। ठीक है, फिर 0002। देखो ये रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, आपने 02 डाला है और फिर 002 डाला है। अगर 020202 होता तो वो रिपीटिंग पैटर्न हो जाता, ये रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक इरैशनल नंबर हो गया। दूसरा कोई भी नंबर डाल दो, देखो 0.73 03 003 0003 ऐसा डाल दिया भाई साहब। ठीक है, इसके पहले कोई नंबर डालना है, देखो 0.801 001 0001 00001 ऐसा डाल दिया भाई साहब। ठीक है, तमाम नंबर्स हो जाएंगे ऐसे। Many numbers can be inserted. All these are basically what? Irrational numbers. So all these are बच्चा पार्टी what? Irrational numbers. Clear हम people? हम are we clear on this one? हम ऐसा नहीं है कि जो आपके बुक में आंसर है वही सिर्फ आंसर होगा। इन दोनों के बीच में आप बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल नंबर्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल।
√23 ये क्या है भाई साहब? स्क्वायर रूट, ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन स्क्वायर नंबर, ये नॉन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है, हेंस इरैशनल, ठीक है, दिस विल बी इरैशनल। ओके, सो देयरफॉर आपका ये हो गया इरैशनल, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट हम पीपल, दिस इज इरैशनल। अंडर रूट ऑफ 225 कितना आ जाएगा बोलो? अंडर रूट ऑफ 225 इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 15 विच इज व्हाट? रैशनल, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर्स इज बेसिकली रैशनल, तो ये हो गया आपका भाई साहब रैशनल। 0.3796 आनंदम, 0.3796 क्या हो जाएगा? ये रैशनल है इरैशनल? रैशनल क्यों? हाँ, रिपीटिंग है। कहाँ रिपीटिंग है? कौन सा रिपीटिंग है? 3 है, 7 है, 9 है, 6 है, कोई भी रिपीटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है इसीलिए ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग है इसीलिए ये हो जाएगा रैशनल। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दैट्स द रीजन इट विल बी रैशनल, ठीक है। 7.478478 बताओ भाई साहब, रैशनल और इरैशनल? रैशनल क्यों? रिपीटिंग कहाँ है? 478, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये वाला 478 और 478 भले ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट इट इज अ रिपीटिंग पैटर्न, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट, आप इसको क्या लिख सकते हो? 478, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नॉन, सॉरी ये रेकरिंग हो जाएगा, दिस विल बी रेकरिंग और रिपीटिंग, तो रेकरिंग डेसिमल एंड हेंस इट इज व्हाट पीपल हम टर्मिनेटिंग, दिस विल बी बेसिकली व्हाट? टर्मिनेटिंग। रेकरिंग डेसिमल है इसलिए ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, ठीक है। ओके, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है? 1.101, ठीक है। देखो फिर से 2 0 आ गए, फिर 1, फिर से भाई साहब आपके 3 0 आ गए, फिर 1, फिर आपके 4 0 आ गए भाई साहब, फिर 1। सो नॉन टर्मिनेटिंग है ये, दिस इज बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग and at the same time it is non recurring as well, non terminating and non recurring, तो ये बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? what will this be? this will be irrational, ठीक है, this will be irrational। are we clear on this one पाठम पीपलम? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। 0.3 के अंडर रूट को ड्रॉ करना है, वी हैव डन दिस बिफोर बट जस्ट सिंपल कि आप इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अरे यार, ठीक है, नंबर लाइन में अंडर रूट 9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, और अगर ये क्वेश्चन आया तो मिनिमम 4 या 5 मार्क्स का होगा। आपका पहला जो चैप्टर है वो सर्ड्स का चैप्टर है, अब हम उसको और डिटेल में करेंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा बहुत जो है वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे कैसे अंडर रूट को अपन नंबर लाइन्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो है अंडर रूट 9.3 है, इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको समझने के लिए पहले अपन समझेंगे ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा पार्टी? कि अगर कोई ट्रायंगल है विच इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो लेट्स से दिस इज AEC, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल which is right angled at E, this is a right angle triangle which is right angled at E, and from E you have taken a perpendicular and dropped it at B। इसका प्रूफ फिलहाल अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में है, लेकिन आप जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब होगा। आपको ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है, लेकिन आपके जब आप पढ़ेंगे इसको ज्योमेट्री में तब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जानिए ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम होता क्या है, ठीक है। ओके, सो ये 9.3 हमको अगर करना है, ठीक है, सो ये हो गया 1। सो दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ओनली टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। बच्चा पार्टी ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होती है? राइट एंगल ट्राइंगल्स पे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AEC, मेजर ऑफ एंगल AEC ये कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। सेगमेंट EB इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? EB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB इंटू BC, ठीक है। ये हो गया आपके EB का स्क्वायर, दैट विल बी AB इंटू BC, EB का स्क्वायर AB इंटू BC, ठीक है। अगर समझो, इसको ऐसे समझो, देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट्स से आपका राइट एंगल ट्रायंगल है X, Y और Z, ये राइट एंगल एट Y है, तो आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला इसमें, लेट्स से ये हो गया आपका C, ठीक है। तो आपका ये थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम ये बोलता है कि लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर दैट इज YC का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू AB इंटू BC, दैट इज XC
इंटू सी जेड। ये है आपका कौन सा थ्योरम? दिस इज बेसिकली एप्लीकेबल टू ओनली राइट एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। इसको अपन ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम की प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम द राइट एंगल यू आर ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द हाइपोटेन्यूज। जब आप हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर? दिस इंटू दिस, एक्स सी इंटू सी जेड। तो वाई सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स सी इंटू सी जेड। आर वी क्लियर? ओके, तो अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो 9.3 लिया हुआ है, आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे 9.3 को प्लॉट करना है, ठीक है। तो आपने क्या लिया, इसको 9.3 ले लिया और इसको कितना ले लिया? 1, ठीक है। तो अभी बताओ मेरे को ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई बी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी इंटू बी सी, है कि नहीं? आर बी क्लियर? ए बी इंटू बी सी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो ई बी विल बी इक्वल टू ए बी दैट इज 9.3 इंटू बी सी दैट इज 1। तो ये कितना हो गया बोलो? 9.3 का अंडर रूट, है ना। ई बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ई बी की वैल्यू कितनी हो गई? 9.3। अभी इसको आप तो ई बी कितना हो गया आपको? तो आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 9.3। आप यहाँ पे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे एक ऐसे आर्क खींचेंगे, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी आपकी 9.3, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, हम आपका कैसा कंस्ट्रक्शन होगा उसको बाद में देखेंगे। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, ठीक है। तो आप समझ लो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता है, फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल, एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। लेट्स से ये है आपका ए बी सी और यहाँ पे आपका, सो दिस इज बेसिकली राइट angled triangle, right angled triangle which is right angled at B, which is right angled at B. So how do we, so if we happen to draw a perpendicular from here to here, ठीक है, let's say this is x, so bx is what? bx is perpendicular to AC, bx is perpendicular to AC। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? bx का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ax इंटू एक्स सी। bx का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ax इंटू एक्स सी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अभी इसी थ्योरम को हम यूज करते हुए, उनको निर्मल बहुत जोर से देखा, ठीक है, इसी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? अंडर रूट 9.3 बनाएंगे भाई साहब, ठीक है। ओके, तो लेट्स से आपका ये ट्रायंगल है, देखो आपने राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे लिया, टड़ंग टड़ंग, ये हो गया टड़ंग, ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई साहब? टड़ंग, यहाँ से एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट्स से आपका ये वाला हो गया ए बी और ये हो गया सी और लेट्स से ये हो गया ई। इस ए ई को बच्चा बाड़ी आपने कितना लिया? 9.3 और इस ई बी को आपने कितना लिया? 1, ठीक है, क्लियर है। अभी ये जो सी ई है, ये सी ई का स्क्वायर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू ए ई इंटू ई बी। देखो वही है ना, उसको उल्टा करके कर रहे हैं हम। द परपेंडिकुलर दैट यू ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स टू द हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? ए ई इंटू ई बी। कैन वी से दिस बच्चा पार्टी? कैन वी से दिस? ठीक है, ओके। तो आप बताओ मुझे यहाँ पे ए ई की वैल्यू कितनी हो गई? 9.3 और ई बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो सी ई स्क्वायर कितना हो गया बच्चा पार्टी? 9.3 इंटू 1। किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? वही चीज आएगी, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 9.3। तो सी ई का स्क्वायर कितना हो गया? 9.3। तो सी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 9.3। ये सवाल 80% से 85% आपके एग्जाम में आने वाला है और ये सवाल जब आएगा तो इसका वेटेज कम से कम 4 या 5 मार्क्स का होगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, ये है आपका कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल लुक एट द ड्राइंग पार्ट ऑफ इट, ठीक है। ओके, सो आपका ई बी कितना हो गया? ज्योमेट्रिक मीन, तो ई बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9.3 इंटू 1। So this will be 9.3 into 1, that is EB is equal to under root of 9.3. Are we absolutely clear with this? Okay, okay, okay. So represent under root of 9.3 on the number line. How are we going to do this people? ठीक है, draw a segment of AB of length 9.3. तो आप पहले एक segment line बनाइए 9.3 का और उसके बाद उसको extend कीजिए 1 से,
क्यों समझ में आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है? देखो ये आपका बना एक 9.3, फिर इसको एक्सटेंड किया हमने 1 से, ठीक है। अभी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे अपन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये 9.3 और यहां से आपका एक परपेंडिकुलर होगा। तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसको बनाने के लिए व्हाट आर द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू, तो अपन पहले ड्रॉ करेंगे 9.3, ठीक है। ओके, सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी हमने इस पे क्या किया, वी आर मार्किंग व्हाट 9.3। तो ए से लेकर बी तक आपका कितना हो गया 9.3। इससे और 1 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, 1 सेंटीमीटर। तो लेकिन आपने समझ लो यहाँ पे आपने एक और ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से ले लीजिए, सो दिस विल बी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लो ओए बच्चा पार्टी, देख लो पहले 1 सेंटीमीटर बढ़ाया आपने, ठीक है। ओके, सो बी से लेकर सी तक का वैल्यू कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, और ए से लेकर बी तक का वैल्यू कितना हुआ 9.3। आपने यहाँ पे क्या देखा कि कुछ ऐसा ट्राइंगल अगर बन जाए तो बात बन जाए, है ना। अगर मैंने यहाँ पे, सॉरी ये तो बहुत गंदा ट्राइंगल बन गया, अगर मैंने यहाँ पे समझ लो एक परपेंडिकुलर डाला और ये भाई साहब एक ट्राइंगल बनाया और ये आपका एक ट्राइंगल बन गया ये, ठीक है, और ये हो गया ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेट्स से ये ई हो गया, तो ई बी का स्क्वायर will be equal to AB into BC, AB into BC, so that will be how much 9.3 into 1, so that will be how much 9.3, तो EB will be how much, EB will be equal to under root of 9.3, ठीक है। अभी समस्या ये है कि कहाँ से इस परपेंडिकुलर को तो हम बना लेंगे यहाँ पे, लेकिन इसको एंड कहाँ पे करेंगे, ये E का पॉइंट आपको कैसे आएगा, क्या ये समस्या समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना आसान है, किसी भी पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर बना सकते हैं, यू कैन इजीली डू इट, बट द प्रॉब्लम इज वेयर टू एंड दिस, इसको अपन एंड कहां पे करेंगे, ठीक है। सो हाउ डू वी एंड दिस, और एंड आपको ऐसे पॉइंट पे करना है कि आपका देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बने, मतलब एंड आपको एक ऐसे पॉइंट ई पे करना है सो दैट AEC इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्रायंगल। आर वी गेटिंग दिस? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? 9.3 into 1 ये तो समस्या का समाधान हो गया, यहां पे एक परपेंडिकुलर बनाओगे ये भी समस्या होगा, एक समाधान हुआ। लेकिन भाई साहब इस ई पॉइंट को इस परपेंडिकुलर में कहाँ लोकेट करोगे ताकि AE और EC को अगर आप जोड़ो तो आपको एंगल AEC कितना मिले 90 डिग्री। तो इसका जवाब ये है कि जब भी आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये समझ लो एक सर्कल ड्रॉ किया आपने, ठीक है, इस सर्कल में जब भी आप सेमी सर्कल ड्रॉ करते हो, सेमी सर्कल मतलब आधा डायमीटर, अभी यहाँ पे कोई भी एंगल आपका जो लोगे आप वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, angle in a semicircle, angle in a semicircle is a right angle, angle in a semicircle is a right angle, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊं, इसका ऐसे सेमी सर्कल बना लूं, ऐसे अगर ऐसे सेमी सर्कल बना लूं और किसी भी पॉइंट पे मैंने ड्रॉ कर दिया, यहां से मैंने परपेंडिकुलर लिया, ये परपेंडिकुलर उस सेमी सर्कल को जहां पे काटेगा, तो समझो, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, पहले यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। तो चलो भाई साहब परपेंडिकुलर मैंने बना लिया, ये परपेंडिकुलर हो गया लेट्स से। अभी मुझे यहाँ पे ई कहीं लोकेट करना है, तो अभी मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना लूँ, ये सेमी सर्कल बन गया मेरा, ठीक है। अभी देखो ये वाला पॉइंट इसको कहाँ पे टच कर रहा है, इधर। अभी तुम जोड़ दो भाई साहब, ये तुम्हारा ई है, इसको तुम अगर जोड़ दोगे तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, वाई, दिस इज अ एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब तुम कर लो भाई साहब, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहां से तुमने परपेंडिकुलर डाला, सो दिस EB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच AB इंटू BC, बस ये हो गया आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच EB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB हो गया आपका 9.3 इंटू 1, सो ये हो गया आपका 9.3, तो आपका EB कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, EB विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.3। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू आपका कितना हो गया, अंडर रूट 9.3। अभी आप क्या करोगे, इसको नंबर लाइन में लोकेट करने के लिए कंपास को रखोगे B में, इसको लिया यहाँ पे और ये ऐसे आर्क बना दिया, तो ये वाला जो लेंथ आया आपका, लेट्स से ये B है और लेट्स से आपका ये X है, ये जो BX लेंथ आया दिस विल बी हाउ मच अंडर रूट ऑफ 9.3, ठीक है। दैट्स हाउ यू लोकेट। क्या ये समझ में आ रहा है? नाउ द क्वेश्चन इज कि सेमी सर्कल को कैसे बनाएं। सेमी सर्कल को कैसे बनाओगे भाई साहब, तुमको यहाँ पे 9.3 और 1 मालूम है, अभी क्या करोगे, तो सेमी सर्कल बनाने के लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा ये A और C का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना। A और C का मिड पॉइंट कैसे लोगे, स्केल से? नो, दैट्स नॉट द आंसर। तो आप पहले क्या करोगे, इस सेमी सर्कल को बनाने के लिए
आप सी पे कंपास को रखोगे, यहाँ पे एक आर्क खींचा थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा, और यहाँ पे एक आर्क खींचा, ए पे कंपास को रखा, उसी रेडियस से आपने यहाँ पे एक आर्क खींचा, यहाँ पे एक आर्क खींचा, इस लाइन को अगर जोड़ दोगे तुम, सो दिस विल बी बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप किसी लाइन का ड्रॉ करते हो, ठीक है। सो अभी आप क्या करोगे, ये पॉइंट लोगे, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली लेट्स से वाई, और ये हो गया सी। तो अपन क्या करेंगे, ये कंपास को इधर रखा और ये बना दिया, ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल बन गया। इस तरह से आप सेमी सर्कल बनाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ये सवाल आया तो कम से कम 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 2 चीज़ें यूज़ करनी है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम एंड द फैक्ट दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल from the right angle, if you happen to drop a perpendicular to the hypotenuse, so the length of this perpendicular, square of this length will be equal to the product of the two corresponding sides divided, ठीक है। ये एक हो गया। और दूसरा क्या है, सेमी सर्कल में कोई भी एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सो अभी हमारा दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, सेमी सर्कल को ड्रॉ करना। सेमी सर्कल को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका कितना है 10.3, 10.3 का आधा ले लो या तो ये कर लो। तो आप क्या करोगे, देखो आपने कंपास को इधर रखा और एक आर्क उधर ड्रॉ किया, थोड़ा सा इससे ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब ये जो 10.3 है, 10.3 का आधा कितना होगा, 5 पॉइंट कुछ होगा, तो कम से कम 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 5.6 या 7, थोड़ा सा ज़्यादा आपने लिया, हाफ से ज़्यादा। तो आपने क्या किया, वहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया, इधर नीचे आपने एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ यू विल पुट द कंपास हेयर, you are going to place the compass here, you draw an arc here and you draw an arc here. So if you happen to join these two arcs, what will you get, you are going to get the perpendicular bisector of AC. So obviously you will also get the midpoint of AC, both the things, ठीक है। जहाँ पे ये perpendicular bisector इस लाइन को कट करेगा, obviously उस लाइन का वो मिड पॉइंट हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपन करते हैं, इसको अपन ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। दिस इज बेसिकली द लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी हम क्या करेंगे, इसको कंपास को यहाँ रखेंगे, ये हो गया भाई साहब आपका सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया भाई साहब, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अभी आप क्या करोगे, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन, हाँ कहाँ से, बी से, और वो क्या होगा, वो 90 डिग्री का होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे जो, और ये लाइन सेगमेंट जहां पे सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल। अरे राइट एंगल नहीं, तो उस पे आप इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपने भाई साहब ये पहले सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। नाउ व्हाट विल यू डू, यहां पे एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहां पे जो कटेगा तो इससे इसको ज्वाइन किया आपने और इससे इसको ज्वाइन किया, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज बेसिकली यू विल ड्रॉ, अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, कंपास को यहाँ रखना है, यहाँ एक आर्क, यहाँ एक आर्क, इधर से आप एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ऐसे, इधर से सेम रेडियस से एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे, इसको ज्वाइन कर दी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोटेक्टर यूज नहीं करेंगे, 90 डिग्री के एंगल के लिए आप प्रोटेक्टर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर है। यू विल बेसिकली यूज अ कंपास 45, 90, 30, 60, ये सारे एंगल्स के लिए आप प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करेंगे तो मार्क्स जाएंगे आपके, ठीक है। आपको कंपास यूज़ करना है, ठीक है, ओके। सो आपने भाई साहब अभी क्या किया, इस पे कंपास रखा, एक आर्क इधर ड्रॉ किया और एक और सेम रेडियस से इधर रखा आपने, इधर आपने एक आर्क ड्रॉ किया, इससे इस पॉइंट को जोड़ दो, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, ठीक है। सो आपने इसको जोड़ दिया, ठीक है। नाउ ये जो पॉइंट कट रहा है, देखो ये वाला पॉइंट, ये लाइन जो सर्कल को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे ए को जोड़ दो और इससे सी को जोड़ दो, ठीक है, ओके। सो व्हाट यू डू इज बेसिकली, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई बी, ई बी कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, देखो ई बी का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी। ये आप ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ई बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी, दैट इज 9.3 इंटू 1, सो ये हो गया आपका 9.3, ई बी का स्क्वायर, ई बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.3, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 9.3, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका, इसको ज्वाइन कर दिया। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AEC, तो एंगल AEC का मेजर कितना हो जाएगा बोलो, 90 डिग्री, दिस विल बी बेसिकली 90 डिग्री, ठीक है। सो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे एंगल 90 डिग्री इन ट्राइंगल AEC,
मेजर ऑफ एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेगमेंट EB आपके किसके बराबर हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, सो देयरफॉर वी कैन से EB का स्क्वायर हो जाएगा AB इंटू BC, दैट इज 9.3 इंटू 1। तो EB की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 9.3। अभी B पे रखना आपने, E पे रखा, ठीक है, इसको आपने आर्क ड्रॉ किया, B पे रख के आपने E को रखा, तो ये आपने आर्क ड्रॉ किया, तो BF हो गया आपका कितना, अंडर रूट 9.3 हो गया। ये BF कितना हो गया आपका, अंडर रूट 9.3। तो यही आपका भाई साहब, इसी को आप नंबर लाइन में प्लॉट करें, तो BF विल बी इक्वल टू, ये वाला लेंथ आपका कितना हो गया 9.3, यहाँ से आपने घुमा के लिया तो ये आपका लाइन हो गया 9.3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा बड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो ये हो गया आपका 9.3। ओके, एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे अपन कि 1.5? ओके 1.4 कर रहे थे, एक मिनट। हाँ अच्छा 1.5 ही 1.4 है ना, मतलब ये पहला सवाल ही दिखा मुझे वहाँ पे, तो चलिए अरे यार ओके, एक्सरसाइज 1.5, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। 2 माइनस अंडर रूट 5 है, ये रैशनल होगा या इरैशनल? इरैशनल क्यों हो जाएगा, देखो आपका 2 क्या है, 2 इज बेसिकली व्हाट, रैशनल नंबर है, ठीक है, और अंडर रूट 5 क्या है, अंडर रूट 5 आपका है इरैशनल। क्यों, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन स्क्वायर नंबर इज इरैशनल, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन स्क्वायर नंबर इज इरैशनल, ठीक है, क्लियर है। किसी भी नॉन स्क्वायर नंबर का, अभी देखो जैसे 2 एक नॉन स्क्वायर नंबर है, ये आपका क्या हो जाएगा, इरैशनल, ठीक है। अंडर रूट 3 ये आपका क्या हो जाएगा, इरैशनल। अंडर रूट 4 नहीं होगा क्योंकि वो स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अंडर रूट 5 आपका हो जाएगा इरैशनल। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल, तो रैशनल नंबर से जब आप इरैशनल नंबर को ऐड करते हो, ठीक है, रैशनल नंबर से जब आप इरैशनल नंबर को ऐड करते हो, व्हाट डू यू गेट, इरैशनल, ठीक है। इसी तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट, रैशनल और इरैशनल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन विल गिव यू इरैशनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट विल दिस नंबर बी, इरैशनल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो सोल्यूशन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दिस इज 2 इज बेसिकली अ रैशनल नंबर एंड अंडर रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर, सो व्हाट यू गेट इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी एन इरैशनल नंबर। 2 माइनस अंडर रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर बीइंग अ डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल एंड एन इरैशनल। चलिए ये वाला सवाल कीजिए जरा, एकदम आसान सा सवाल है। यहां पे क्या दिया हुआ है, देखो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, यू विल हैव टू टेल वेदर इट इज अ रैशनल नंबर और एन इरैशनल नंबर। इसको भाई साहब खोलो अगर ब्रैकेट को, तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू गेट, 3 विच इज अ रैशनल नंबर, सो दिस इज बेसिकली अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, दैट विल बी 3 विच इज अ रैशनल नंबर। 2 बाई अंडर रूट 7, 7 बाई अंडर रूट 7, रैशनल और इरैशनल, रैशनल क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएंगे। कितना आया आपका 2 बाई 7 विच इज ऑफ कोर्स रैशनल नंबर, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस एग्जिस्ट कर रहा है, P बाई Q फॉर्मेट में, वेयर P and Q are both integers, where P and Q are both integers and Q is not equal to 0. Are we clear on this one people? ठीक है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 बाई 7 विच इज अ रैशनल नंबर। 1 बाई अंडर रूट 2 इरैशनल क्यों, तो आपका यहाँ पे डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स है, तो यहाँ पे 1 को क्या बोल सकते हैं, रैशनल, 1 is divided by under root 2 which is irrational, ठीक है। So the answer will be irrational, the answer will be irrational, ठीक है। 1 by under root 2 is an irrational being the quotient of a rational and an irrational।
क्वोशंट या आप बोल सकते हैं डिवीजन रिजल्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल. सो व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय एन इरैशनल नंबर द आंसर विल बी इरैशनल. ठीक है, ओके 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 बच्चा पार्टी. 5 2 पाई इरैशनल. क्यों? क्योंकि 2 आपका 2 इज रैशनल एंड पाई इज इरैशनल. अच्छा, पाई इरैशनल क्यों है? पाई आपका इरैशनल क्यों है? क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 है ना. पाई की वैल्यू तो 22/7 है और आपका डेफिनेशन क्या बोलता है? p बाई क्यू फॉर्मेट में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो q नॉट इक्वल टू 0 है. और इसको एक्सपैंड भी करोगे तो आपको वही मिलेगा ना, 3.1428 है, फिर बार वाला मिलेगा वो. ठीक है, तो इसको अपन क्यों बोल रहे हैं कि दिस इज इरैशनल? तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब पाई हम ले लेते हैं 22/7. एक्चुअली पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7. ठीक है, पाई इज नॉट एग्जैक्ट. हाँ, कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए आप पाई इज इक्वल टू 22/7 ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7 एंड दैट्स द रीजन पाई इज एन इरैशनल नंबर. ठीक है, पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, हम यहाँ पे बोलेंगे पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7 एंड दैट्स द रीजन इट इज इरैशनल. ठीक है, सो यहाँ पे हो गया 2 पाई इज एन इरैशनल बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल. ओके, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है. ठीक है, सो 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2. तो अपन क्या करेंगे? देखो इस 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू 2 प्लस √2 और इस प्लस √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 प्लस √2. सो व्हाट डू वी गेट? यहाँ पे आ गया आपका 6 प्लस 3 √2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2 √3 प्लस √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा? √6 है कि नहीं? कितना आ गया बोलो यहाँ पे? 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6. आप इनमें से किसी को भी ऐड नहीं कर सकते, सबके सब अलग है. ऑल आर नॉन लाइक टर्म्स. ठीक है, √6 आपका अलग, 2 √3 अलग, 3 √2 अलग और ये 6. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. सिंप्लीफाई. तो यहाँ पे आपने 3 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया? 2 प्लस √2 से, और फिर √3 को आपने मल्टीप्लाई किया इससे. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3 √2, 2 √3 प्लस √6. ये पूरा आपका आंसर होगा, क्योंकि सारे के सारे अनलाइक टर्म्स है, इसमें से आप किसी को भी ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, ये आपका अलग टर्म है, ये आपका अलग टर्म है, ये आपका अलग टर्म है और ये भी आपका अलग टर्म है. ठीक है, ओके. चलिए अभी इसको करते हैं. देखो इसको करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे आपका a प्लस बी है और ये हो गया आपका a माइनस बी. सो a प्लस बी एंड a माइनस बी गिव्स यू व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है. इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट पेयर. कॉन्जुगेट पेयर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अगर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर. सो यहाँ पे हो गया भाई साहब 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6. ठीक है, क्या आ गया आपका? रैशनल नंबर. तो अगर इस तरीके के कॉन्जुगेट पेयर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये क्या है? क्या ये इरैशनल है? बिल्कुल है भाई साहब. रैशनल प्लस इरैशनल, क्या ये इरैशनल है? बिल्कुल है भाई साहब. रैशनल माइनस इरैशनल, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से तुमको क्या मिल रहा है? रैशनल मिल रहा है. सो कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है? जब दो इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा. श्रेया, ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब. तो जब भी आप कॉन्जुगेट पेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं योर आंसर विल बी रैशनल. इसको याद रखिएगा. ठीक है, और इसी तरह से हम इरैशनल नंबर्स को रैशनल बनाएंगे. ठीक है, अगर समझ लो आपको ऐसा दिया है, देखो 1 प्लस 3 प्लस √3 और आपको बोला जा रहा है कि मेक द डिनोमिनेटर और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आप क्या करोगे? इसके कॉन्जुगेट पेयर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे. 3 माइनस √3, ऊपर भी कितना हो गया? 3 माइनस √3, तो ये कितना हो गया? 3 माइनस √3 और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 माइनस √3 और यहाँ पे कितना हो गया? 9 माइनस 3, तो ये हो गया 3 माइनस √3 अपॉन 6. ठीक है, ये हो गया आपका. क्लियर है? ओके ओके ओके.
सो 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3, 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 दैट इज 6। 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। देखो अभी इसको कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चा बाड़ी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। आर बी क्लियर, कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी, यहाँ पे अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 10। ठीक है, तो 5 प्लस 2 बच्चा बाड़ी कितना हो गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 5 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। आर बी क्लियर, क्लियर 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 पीपलम, ओके। 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 2, चलिए इसको कीजिए, कितना आ जाएगा बोलो, कॉन्जुगेट बेस है, सिंपल, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपको कितना देता है, वी नो इट गिव्स अस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस विल गिव अस 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25 माइनस 2 दैट इज 23, तो 25 माइनस 2 दैट इज 23। सो यहाँ पे हो गया आपका 5 माइनस 2, ओ यहाँ पे अंडर रूट 5 कहाँ से हो गया, नहीं सवाल यहाँ पे सॉल्व गलत किया है, ये 5 स्क्वायर होगा, 25 माइनस 2 दैट इज 23। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, ये गलत किया हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट 5 नहीं है, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 2। ओके, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द, हाँ 5 स्क्वायर है ना, कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे अंडर रूट 5 है इसका मतलब, ठीक है, अगर यहाँ पे अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है चलेगा। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, देन पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, पाई बेसिकली है क्या, सर्कमफरेंस दैट इज सी बाई डी। सर्कमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर, और डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है रेडियस बाई 2। ठीक है, सॉरी डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस, तो आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी पाई। तो पाई इज बेसिकली रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरैशनल। पाई आपका इरैशनल क्यों है, क्योंकि पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। हम इसको लेते हैं कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन एज ईदर सी और डी आर इरैशनल एंड हेंस पाई इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें से सी में से या डी में से कोई एक आपका इरैशनल होगा। ठीक है, ईदर सी और डी इज इरैशनल एंड दैट इज द रीजन पाई इज इरैशनल। समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा गया है बहुत बार, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग 9th के सिलेबस में या क्वेश्चन पेपर्स में देखा है। ठीक है, सो पाई इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, सी बाई डी, वेयर सी इज बेसिकली व्हाट, circumference of the circle and d is what, diameter of the circle। ठीक है, diameter of the circle। pi is c by d where c is circumference and d is diameter of the circle। ठीक है, और ये पाई irrational क्यों है बच्चा बाड़ी, why is pi irrational, because यहाँ पे either c और d, so either c और d is irrational, either c और d is irrational and hence therefore हम बोल सकते हैं pi is irrational। So either C or D is irrational and hence pi is irrational। Are we clear to this one? ठीक है, write the conjugate of the following surds। आपका है चैप्टर सर्ड्स का। ठीक है, तो सर्ड्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके भाई साहब क्या होते हैं, जैसे अंडर रूट 5 ये एक सर्ड है। ठीक है, सर्ड मतलब सरदार जी नहीं, सर्ड मतलब होता है आपका अंडर रूट 5, एक नॉन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट। ठीक है, एक नॉन स्क्वायर नंबर का अंडर रूट आपका सर्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए कॉन्जुगेट आप समझ लो, जैसे सर्ड है यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आई ओके अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और इसका प्रोडक्ट का आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर नहीं,
5 नहीं आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो आपका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 दैट विल बी अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। 5 प्लस 1 अंडर रूट 5 प्लस 1, इसका कॉन्जुगेट बेस कितना हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1, ठीक है, अंडर रूट 5 प्लस 1 और ये अंडर रूट 5 माइनस 1 है, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 5 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 1, सो दैट विल बी हाउ मच अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 5 माइनस 1 दैट इज 4, आर वी गेटिंग दिस, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस, ओके ओके ओके, सो यहाँ पे 5 माइनस 1 5 प्लस 1 इंटू 5 माइनस 1 दैट विल बी 5 का स्क्वायर, सो 5 माइनस 1 दैट इज 4, 4 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 27, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ओके, सो इसका कॉन्जुगेट आपका हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 27, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 अंडर रूट 3 27, 4 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 27, 4 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 27, so this will be how much, this will be 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 27 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 माइनस 27, 16 3 48 माइनस 27, 8 से 7 गया 1, 4 से 2 गया 2, 21 आ जाएगा, ठीक है, सो 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 27, 16 इंटू 3 माइनस 27, तो ये हो गया आपका 21, चलो इसका कितना होगा बोलो, कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, बोलो 27 सर्ड नहीं है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस देखो, अगर मैं देखूं यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 ये कहाँ से आया रहेगा, देखो ये भी तो कंप्लीट सर्ड नहीं है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 होगा, ये 16 इंटू 3 मतलब ये अंडर रूट 48 फॉर्मेट में था, लेकिन तुम क्या इसको सर्ड बोल रहे हो ना, इसको सर्ड बोल रहे हो, 27 अगर देखोगे तो क्या होगा, देखो सर्ड हुआ ना, 27 मतलब हो गया 9 इंटू 3, तो तुम्हारा कितना होगा 3 अंडर रूट 3, अभी ये सर्ड होगा ना भाई साहब, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक भी ऐसा अंडर रूट होता है जो इररेशनल है वो सर्ड हो जाएगा, तो तुम्हारा अंडर 227, इसको ऐसे सोचो 9 इंटू 3, 9 का 3 बाहर निकालोगे 3 बाहर आया, लेकिन अंडर रूट 3 तो बच रहा है ना तुम्हारे पास, तो क्या ये सर्ड होगा, यस इट इज अ सर्ड, अगर अंडर रूट 9 होता सिर्फ तो सर्ड नहीं है, लेकिन अंडर रूट 27 है तो सर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपरली स्क्वायर नंबर नहीं है, एनी स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन स्क्वायर नंबर इज अ सर्ड, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन स्क्वायर नंबर इज अ सर्ड, ठीक है, क्या 27 स्क्वायर नंबर है, नहीं, तो सर्ड हो जाएगा, ठीक है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, तो चलिए इसका आपका कॉन्जुगेट बेस ये हो गया, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब अंडर रूट एक्स वाई का स्क्वायर, मतलब ये अंडर रूट हट जाएगा बस और कुछ नहीं, ये अंडर रूट हट जाएगा, इतना कितना आ जाएगा बोलो, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, अंडर रूट दोनों के भाई साहब ऊपर उठ जाएंगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ओके, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, जैसा मैं आपको बोल रहा था आपके बहुत ज़्यादा सवाल इस पे हैं, एक एक्सरसाइज पूरा आपका यही है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, 4 बाई अंडर रूट 5, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, मतलब मुझे डिनोमिनेटर में कोई इरैशनल नंबर नहीं चाहिए, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, इज अंडर रूट 5 एन इरैशनल नंबर, डेफिनेटली इट इज, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, अंडर रूट 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्योंकि आप डिनोमिनेटर को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको बाय डिफॉल्ट न्यूमरेटर को भी अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस विल बी 4 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, दैट विल बी हाउ मच 5, ठीक है, सो दिस इज, आपने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, इरैशनल से डिनोमिनेटर क्या बन गया, रैशनल, ठीक है, क्लियर है, ओके, सो 4 अंडर रूट 5, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे अपने किससे मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अंडर रूट 5 अपॉन 5, ठीक है, 1 बाई अंडर रूट 12, इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, इंटू ये हो गया अंडर रूट 12 और ये हो गया अंडर रूट 12, सो दैट विल बी हाउ मच, अंडर रूट 12 बाई 12, हो गया भाई सब खत्म, ठीक है, अंडर रूट 12 बाई 12,
तो अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं 1/√12 इज इक्वल टू 1/2√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ एक अच्छी बात है, 1/√12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, तो ये 2√3। अभी मुझे बताओ, इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करूं? रैशनलाइज करने के लिए मैं डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करूं? अरे सिर्फ तुम्हारा √3 तो है ना, तो इसको तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो? √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो? √3 ऊपर चला गया और √3 × √3 क्या हो गया? 3 × 2 कितना हो गया? 6। जैसे इसके पहले मैंने क्या किया, 1/√12 था, इसको मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 12 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √12/12 हो गया। लेकिन इस √12 को क्या लिख सकते हो? इस √12 को लिख सकते हो 4 × 3/12। इस 4 का अंडर रूट बाहर निकालोगे कितना आएगा? 2 √3/12। सो 2 1 2, 2 6 12। सो ये हो गया √3/6। ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम है आपके। इस वे से जाओ या उस वे से, आपका आंसर दोनों का सेम आएगा, √3/6। आर वी क्लियर? ठीक है। सो ये हो गया आपका √3/6। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या करोगे भाई साहब? किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको √7 से और इसको भी √7 से, तो ये हो गया √7/7। सिंपल, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली हाउ मच? √7। ये हो गया आपका 1/√7। इसको कैसे रैशनलाइज करोगे? क्या होगा कॉन्जुगेट पेयर? ओके, ठीक है। ओके, तो √7 प्लस √6 यू आर गेटिंग दिस मल्टीप्लाइड बाई कॉन्जुगेट। तो ऊपर भी आपका क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6। सो दैट विल बी √7 प्लस √6, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? a माइनस बी, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपलम? सो दिस विल बी √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। सो दिस विल बी √7 प्लस √6 अपॉन 1, ठीक है। क्लियर है? सो यहाँ पे हो गया √7, ठीक है। √7 कॉन्जुगेट ऑफ √7 माइनस √6 इज √7 प्लस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? √7 माइनस √6, ठीक है। सो ये हो गया आपका √7 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। सो दैट विल बी √7 प्लस √6। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। दिस विल बी √5 प्लस √ आपका है कितना? 2। कैसे रैशनलाइज करेंगे सर? मिस्टर भौमिक क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ डिनोमिनेटर को कि दोनों, ठीक है। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप कॉन्जुगेट बेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। √5 माइनस √2, तो ऊपर कितना आ गया? √5 माइनस √2 और नीचे कितना आ जाएगा? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 2। सो दैट विल बी √5 माइनस √2 अपॉन 3, ठीक है। √5 माइनस √2 अपॉन 3, ठीक है। सो दिस विल बी मल्टीप्लाई, आपने कर दिया यहाँ पे √5 माइनस √2 से। सो व्हाट यू गेट इज √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो दैट इज √5 माइनस √2 अपॉन 3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। √7 माइनस 2, इसका कितना आ जाएगा बोलो? कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा इसका? √7 प्लस 2 और ऊपर क्या हो जाएगा? √7 प्लस 2, ठीक है। सो दैट विल गिव यू √7 प्लस 2 अपॉन, यहाँ पे कितना है? √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी √7 प्लस 2। √7 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा पार्टी? 7 माइनस 4। सो दैट विल बी √7 प्लस 2 अपॉन 3। √7 प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी √7 प्लस 2। सो यहाँ पे आपने क्या किया? इंटू 7 प्लस 2। सो ये हो गया 7 प्लस 2, 7 स्क्वायर माइनस 2। सो दैट इज गोइंग टू बी 7 माइनस 4, तो √7 प्लस 2/3। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Okay, thank you so much for your valuable time people.